am Dr. Priya Shahin, and today I will deal very important literary terms. And first, I start here with synthesio. What is synthesio? Synthesio is a literary device which the writers use to present ideas, characters, or phrases in such a way that they appeal to multiple senses such as hearing, seeing, smelling, tasting, and feeling. So, in literature, synthesio is also called sense transference or sense analogy. Synthesio is also called sense transference और सेंस अनालोगी. यानी सिंथेसियो जो है एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें राइटर्स किसी भी आइडियाज को, कैरेक्टर्स को और प्लेसेस को इस तरह से प्रेजेंट करता है, इस तरह से पोर्ट्रेट करता है, डिपिक्ट करता है, जो कि मल्टीपल सेंसेस को इवोक करता है. जैसे सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्टिंग, सेंस ऑफ फीलिंग एंड सेंस ऑफ स्मेलिंग. सो सिंथेसिया जो है वो मल्टीपल सेंसेस को इवोक करता है विच ब्रिंग सेंसरी एक्सपीरियंसेस. सेंसरी एक्सपीरियंसेस को यह दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू से अ स्वीट साउंड एंड अ बिटर कोल्ड. अब यहाँ पर इस सेंटेंस में आप क्या देख रहे हो? स्वीट साउंड. साउंड किसको रेफर कर रहा है? कौन सा सेंस को इवोक कर रहा है? सेंस ऑफ हियरिंग को इवोक कर रहा है. एंड अ बिटर कोल्ड. बिटर कोल्ड किसको कर रहा है? कोल्ड. सेंस ऑफ फील, सेंस ऑफ फीलिंग. तो यहाँ पर सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ फीलिंग आपको इवोक क्या कर रहा है? यह सेंसरी डिटेल्स को इवोक कर रहा है. राइट. सो यह आपका सिंथेसियो का एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई कैन टेक इट फ्रॉम जॉन किट्स. जॉन किट्स यूज्ड the best example of synthesio in his poem Ode to a Nightingale, when he writes, tasting of flora and the country green, dance and Provençal song and sunburnt mirth. Oh, for a beaker full of the warm sound, full of the true, the blushful Hippocrene. अब यहाँ पर यह पूरा सेंसरी डिटेल से भरा हुआ है ये स्टेंजा जॉन किट्स का. टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा. टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट को इवोक कर रहा है. इसी सेंटेंस में कंट्री ग्रीन, सेंस ऑफ साइट, विजुअल सेंस को इवोक कर रहा है. डांस, फीलिंग. सॉन्ग, सेंस ऑफ हियरिंग. मर्थ, सेंस ऑफ फीलिंग. वार्मथ, सेंस ऑफ फीलिंग. ब्लशफुल हिप्पोक्रेन, सेंस ऑफ साइट. पूरा स्टेंजा आपको सेंसरी डिटेल्स से भरा हुआ है. और इट all evoke multiple emotions and multiple senses, right? So this is the example of synthesia. Next example we can say synthesia is found in Keats's poem Ode to Autumn, where he begins the stanza of this poem that is highly sensuous, imbued with sensory details which arouse our faculties, when he writes, season of mists and mellow fruitlessness, close bosom friend of the maturing sun. So here Keats describe the mood and the atmosphere of the autumn season which evoke the different senses of human mind. He used beautiful imagery and sensuality when he says that autumn ripenes fruits and causes the late flowers to bloom. And again, he refers to sense of hearing in the famous quotation of Ode on a Grecian urn, where he writes, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. So what do you find here? The sense of hearing he used. Okay. Next, synthesia can be also found in Wordsworth's poem Tintern Abbey, where he used sensory details to create a mood of reflection and connection with nature. You know, Wordsworth is known as a poet of nature, so he used multiple sensory details in his poem. So Tintern Abbey is also an example of synthesia. In the following lines of Daffodils, he describes sense of sight, sense of sensory details, when he says 10,000 saw I at a glance,
10,000 saw I at a glance, tossing their heads in spiritly dance. यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? 10,000 saw I at a glance, यानी 10,000 इसने एक बार में देखा. यह आपका क्या वो कर रहा है? सेंस ऑफ साइट का. टॉसिंग देयर हेयर्स इन स्प्रिटली डांस, राइट. अगेन he ends this poem with sensuous impression that gives sensory detail when he writes, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils, right? So when my heart with pleasure fills and dances with the daffodils, again he used sensory detail that evoke sense of feeling, sense of sight. Clear? Next literary term is anadiplausis. This literary device, here it is used in which a word or phrase is repeated, ending one clause or sentence and then beginning the next. The word, phrase at the end of the sentence begins with the next sentence. This device is usually used to create emphasis, rhythm and a sense of logical progression in writing or speech. यानी anadiplausis एक ऐसे लिटरेरी डिवाइस है जिसमें किसी भी वर्ड या फ्रेज को रिपीट किया जाता है, किसी भी सेंटेंस को. लेकिन वह कैसे रिपीट होता है? यानी कि जो वर्ड या फ्रेज फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में होगा, वही सेंटेंस वही वर्ड सेकेंड सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज होगा, और फिर जो वर्ड सेकेंड सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा, वही वर्ड थर्ड सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज होगा. फिर जो वर्ड थर्ड सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा, वही वर्ड फोर्थ सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको बताती हूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई राइट मोइस्ट इन द ग्रास, grass in the wind, wind on the lark, lark for the sun. आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? moist in the grass, फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में grass है. अब जो लास्ट है उसका रिपीटेशन कहाँ हुआ? सेकेंड सेंटेंस के बिगिनिंग में हुआ, राइट. सेकेंड सेंटेंस के बिगिनिंग में grass का यूज हो गया, जो कि फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में हुआ था. फिर grass in the wind, अब सेकेंड सेंटेंस कहाँ पे खत्म हुआ? विंड पे. तो विंड जहाँ पे खत्म हुआ, विंड को सेकेंड सेंटेंस में जो वर्ड खत्म हुआ वो थर्ड सेंटेंस में उसका उसी वर्ड से स्टार्ट होगा. थर्ड सेंटेंस में आप क्या देख रहे हो? सेकेंड का एंडिंग, फिर वो थर्ड सेंटेंस का वो बिगिनिंग हो गया, विंड ऑन द लार्क. अब थर्ड सेंटेंस जो है वो लार्क पे खत्म हो रहा है, तो फोर्थ सेंटेंस लार्क से स्टार्ट हुआ. तो आप क्या देख रहे हो? इसमें ध्यान ये रखना है कि जो वर्ड फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में यूज होगा, वो सेकेंड सेंटेंस का बिगिनिंग में यूज होगा. फिर जो सेकेंड सेंटेंस में लास्ट में यूज होगा, वो थर्ड के बिगिनिंग में होगा, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है. तो इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज होता है एक्चुअली किसी भी इम्प्रेशन को वो इम्फेसाइज करने को, रिथमिक इफेक्ट को लाने के लिए, या सेंस ऑफ लॉजिकल प्रोग्रेशन को इन्हांस करने के लिए किसी भी राइटिंग, स्पीच या पोएम में यूज किया जाता है. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं. आवर डाउट इज आवर पैशन, आवर डाउट इज आवर पैशन एंड आवर पैशन इज आवर टास्क. यहाँ पर क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में आवर पैशन है, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो आवर पैशन से स्टार्ट हुआ. आवर पैशन इज आवर टास्क. तो लास्ट में हम टास्क है, तो हम थर्ड सेंटेंस को फिर हम टास्क से शुरू कर सकते हैं. तो इस तरह से ये आपका anadiplausis का एग्जाम्पल हो गया. क्लियर? नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज एंटोनोमेसियो. It is a figure of speech where a proper name is replaced by a descriptive title or vice versa. It is a type of metonymy where one word or phrase is substituted for another with which it is closely associated. यानी कि एंटोनोमेसियो एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कोई भी जो प्रॉपर नेम होता है उसको रिप्लेस किया जाता है किसी भी टाइटल से, या वाइस वर्सा, या किसी का टाइटल उसके नाम से रिप्लेस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, रेफरिंग टू विलियम शेक्सपियर एज द बार्ड. अगर विलियम शेक्सपियर के लिए जो एक टाइटल यूज किया जाता है द बार्ड, तो ये आपका एंटोनोमेसिया का एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, माइकल जैक्सन एज द किंग ऑफ पॉप.
उनको किंग ऑफ पोप के टाइटल से जाना जाता है। तो ये आपका एंटोनिमोसिया हो गया। थर्ड एग्जाम्पल, महात्मा गांधी इज नोन एज महात्मा, यानी महात्मा गांधी को टाइटल महात्मा के टाइटल से भी जाना जाता है। तो यह आपका एंटोनिमोसिया हो गया। द कॉर्पोरियल टाइटल गिवन टू नेपोलियन वन, नेपोलियन वन को जो द कॉर्पोरियल टाइटल दिया गया है वो एंटोनिमोसिया हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फूले टाइटल गिवन टू ज्योतिबा फूले। तो ये जो फूले टाइटल वो आपका क्या हो गया, एंटोनिमोसिया, यानी जो किसी भी इंसान के लिए जो टाइटल यूज किया जाता है यूजुअली या वाइस वर्सा, तो हम उसको एंटोनिमोसिया कहते हैं। थैंक यू।